system started from the Odisha. You know, origin of the Nagari style temple, where? From Odisha. First temple we have seen from the Nagari style, that is the Lingaraj or maybe some other Puri, Jagannath Puri and Konark temple. These are the Nagari style temple. Then they spread it to the all over India, like Khajuraho temple, Kandariya Mahadev temple. There is a mosque temple we have seen in the Khajuraho. That is also style of Nagari style. Then Dravidian style, mostly Tamil Nadu, Kerala. Just listen me, yaar. You know, I know that. You just listen. Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Southern Karnataka, Andhra Pradesh. These, just listen me. These belongs to the Dravidian style. And North Karnataka, Southern Maharashtra, some part of Andhra, these area we have find Besar style temple. Okay. जो आप कर्नाटक के अंदर, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र और पश्चिमी आंध्र प्रदेश का एक रीजन है जहाँ पे यू सी द हम्पी यू हर्ड अबाउट द हम्पी इन द कर्नाटका. वी विल फाइंड देयर द बेसर स्टाइल टेम्पल. दे हैव सम पार्ट ऑफ नागर स्टाइल, सम पार्ट ऑफ द्रविडियन स्टाइल. द मिक्स आर्किटेक्चर वी कैन कॉल बेसर स्टाइल, बसेर स्टाइल, बेसर स्टाइल. दिस टर्मिनोलॉजी में भी सम डिफर. ओके. तो ये भारत के अंदर जो ये हमने बताया है, उड़ीसा के अंदर है और अपने खजुराहो में है, फिर राजस्थान में है, गुजरात में है. इस एरिया में नागर स्टाइल के टेम्पल हैं. अब आती है बात, आई विल डिस्कस अबाउट द प्लान्स ऑफ द टेम्पल. जो ये मंदिर बना है ये पंचायन प्लान पे बना है. नागर स्टाइल में कौन सा प्लान है? विच प्लान? पंचायन प्लान. This temple is based on Panchayan plan, right? Nagar style Panchayan plan. Panchayan plan is a what? The main god statue in the middle, like Jagannath is sitting there. Okay. Then starting from the Lord Ganesha, Lord Shiva, the Sun temple, and the goddess Mata Amba Durga Devi, right? So Sun, Durga, Ganesh, and the Shiva. These four, gods in the corner of this क्या बोलते हैं उसको, वर्ग फीट बोलते हैं ना उसको, वर्गाकार. दिस इज प्लान ऑफ वलयाकार. या ठीक है ना. उसके चारों ओर ये गॉड है और बीच के अंदर है अपने लॉर्ड जगन्नाथ भी जगत का ईश्वर, द गॉड ऑफ द यूनिवर्स. दिस द इंडियन माइथोलॉजी. वी हैव सम, किसी को हम आधार बना देते, कैटलिक एजेंट होता है, some agent from the universe energy. So we pray the statue, we just connect to the universal energy through the medium. Yes, good. So ये एक इंडियन माइथोलॉजी के अंदर है. इसी तरह से टेम्पल की जो है निर्माण की जो परंपराएं चली है. So since starting to now we are making the temples. Now this part of the temple we call शिखर. व्हाट? ये यहाँ से यहाँ ऊपर को बोलते हैं शिखर. दिस पार्ट वी कैन से सभा मंडप. देयर द worshippers are sitting. Okay, the public people are starting the bhajan, satsang, meditation, whatever it is, the mantras, uchcharan of mantras. They used to build like that. Where is the we say amlak is there, and the mast is there. Mast we call dhwaja. Dhwaja is the symbol of truth. Understand? The dhwaja, golden mast is there. You know the three sides. The main side is that is a symbol of truth. Okay, that is the symbol of truth. Okay. Then round shape is there. After that kalasha is there. The Indian mythology we believe that once time we have to be melted in the Brahma. That is a symbol of Brahma. Brahma means unknown zone where somebody will disappear some one day. Okay. So that is the some meaning of the temple architecture, right? Now we'll discuss about this stone. We have mostly used the marble stone in the here in the original style. This is the marble style. This is the normal granite stone. Maybe inside you will see the black statue of the main Lord Jagannath. You will see the black, completely black. That we can granite. In Hindi we can say Sangh Musa. That stone we
brought from the 17 kilometers from here. Some Keshariya ji is the place where we have produced this granite. Okay, so जो मूर्ति बनी है अंदर लॉर्ड जगन्नाथ की, वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर केशरिया जी स्थान है, यहाँ पे यूज किया है हर स्टाइल एवरी। आप जाइए जगन्नाथ में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में, वहाँ का जो लोकल स्टोन होगा उससे बनाया गया है। आप अगर ताजमहल या उसके आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे या भरतपुर के क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ रेड स्टोन होगा। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देखी होगी सारनाथ के अंदर, वो रेड स्टोन की हैं। आप जाइए कंधार के अंदर, कंधार और सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, देयर यू विल फाइंड द ब्लैक स्टोन। अंडरस्टैंड? भूरा जो पत्थर होता है, सलेटी पत्थर होता है, वो आपके कश्मीर के ऊपरी भागों में मिलता है। तो वहाँ जो मूर्तियाँ बनेगी वो उसकी बनेगी। तो ये हमें सीखना है कि हम जहाँ होते हैं उसी का चीज़ हम यूज़ करते हैं, है ना। हालांकि ताजमहल के अंदर जो आया था वो राजस्थान से गया था, मार्बल, है ना। तो इस तरह से हम प्राचीन समय के अंदर चीजें इस तरह से बनी। हम अब डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, मंदिर के इस पार्ट को। आप देखेंगे, यू सी दिस इज द, ये डरावने चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये कुछ अजीब सी शक्ल किए हुए हैं। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मास्क इज देयर, व्हाट वी कॉल द कीर्ति मुख, व्हाट वी कॉल कीर्ति मुख। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्कल्पचर। ये जो डरावने चेहरे हैं, इट्स द डेविल्स आईज, सो the mythological way of the aspect of the temple. This mask, why they carved there? To protect the temple from the devil's eyes. Okay, अपन कहते हैं ना हिंदी के अंदर नजर लग गई, नजर लग गई। The second stage, this is the गज स्तर। गज means हाथी, so that is the गज stage, you can say, हिंदी में कह सकते हैं गज स्तर। ये सारा गज स्तर है। Then ये अश्व स्तर है। Third one is the Ashwa star, that is a horse stage, okay. Thereafter human life, they carved there, the human life is there. Thereafter you can environmental life, फूल पत्तियां बनी हुई है, देखिए आप इसको, आप ध्यान से देखेंगे मंदिर के स्टेजेस को। उसके बाद आप देखेंगे देवी देवता, ड्रैगन, ये वो अच्छाई और बुराई एक साथ है ऊपर, देखिए ड्रैगन जो है वो बुराई का प्रतीक है, देवी देवता, म्यूजिशियंस, दे आर द। अब आप देखिए हिंदू माइथोलॉजी के अंदर आप शैतान से ऊपर आइए, फिर एनिमल से ऊपर आइए, इन्वायरमेंट के बाद आइए म्यूजिशियन की लाइफ, म्यूजिशियन के बाद में देवताओं की लाइफ के बाद में अननोन, कुछ भी नहीं है आगे। ये माइथोलॉजिकल में है कि हम हर योनि से गुजरते हैं, छोटी योनि से लेके आगे हम आध्यात्म, बिकॉज एवरीबडी इज फेथ ऑन द गॉड, एवरीबडी हैज ए फेथ ऑन द गॉड। इफ यू कम टू मी, ओके, यू जस्ट कीप माई दिस गोल्ड फॉर द सेफ, so it's a, I am a human being, sometimes I can deny, not, I don't have your gold, but faith of the God, you just blind faith on the God, you just keep your gold there, you can, कि भगवान के भरोसे हम अपना चीज छोड़ते हैं। so that was the, उस समय के जो है मेन हमारा जो भावना होती थी, वो भगवान के ऊपर इतनी आराधना होती थी कि हम उसके ऊपर हमारा सब कुछ छोड़ने को राजी हो जाते थे, अंडरस्टैंड। तो हमें तहखाने मिलेंगे प्राचीन मंदिरों के अंदर, नीचे तहखाने का मतलब ये नहीं इंडियन एम्परर, एवरीवेयर, मे बी ऑन द टेम्पल, मे बी ऑन द फोर्ट, मे बी ऑन एनी पब्लिक प्लेस, यू विल फाइंड द व्हाइट एलिफेंट। यू कैन सी आउटसाइड ऑफ दिस टेम्पल 2 elephants are there. Why they construct? Power, strength. These are the one part of elements, one consolidate word, one word can define all about this. Only one. Prosperity consists power, okay, power, your हमारा जो है spiritual growth, well-being, peace, आपके पास धन भी हो गया, शांति भी हो गई। होता नहीं है, हम धन के कारण दुखी थे। भारत को हम गोल्डन बर्ड बोलते हैं ना, गोल्डन बर्ड बोलने का एक ही कारण, गोल्ड पैसा इतना था हमारे पास, भारत के पास इतना धन था कि हम शांति से रहते थे। हमारे पास